Welcome to the Deep Dive. Today we're jumping into something pretty specific, a piece of communication kicking off a new university lecture series. That's right. We're looking at RD and DJ College, specifically the welcome message for their postgraduate zoology students, semester 3. And it's all about one particular paper, the CC10. Sounds important. Oh, it is. Our mission here is really to unpack these introductory remarks. They set the stage for what seems like a critical course. And it's being led, or at least introduced, by the head of department, Dr. Mayank Madhukar. And he mentions a pretty unique format. Let's get into it. Okay, first off, the audience. It's explicitly the PG Zoology Semester 3 students. No ambiguity there. Right. And interestingly, they're addressed as Honor Vidyarthian. Which means? Explicitly the PG Zoology Semester 3 students. No ambiguity there. Right. And interestingly, they're addressed as Honor Vidyarthian. Which means? Bright students, promising students. It immediately sets a high bar, but it's also encouraging. It says, we know you're capable, and this material is for you. So high expectations from the start. What about this CC10 paper? Why is that so central? Well, in university structures, a CC or core course, especially in semester 3, is usually where things get really specialized. It's moving beyond the basics. So the fact that the head of department, Dr. Madhukar, is personally launching this signals just how vital the college considers this CC10 content. It's likely foundational for their advanced specialization. So it's not just another course. It's a cornerstone, maybe? Precisely. It forms the basis for their later research, maybe their careers. His involvement underlines that this isn't peripheral, it's core. Which connects, I suppose, to making sure they really get it. Exactly. Yeah. For advanced students, the hurdle often isn't intelligence, it's navigating the sheer complexity and density of specialized information. Okay, now here's the bit that really caught my eye. The source actually calls it an AI lecture. That's specific. What does that suggest? It's not just putting a recording online, is it? Probably not. Using the term AI lecture really points towards the institution, RD and DJ College, actively bringing technology into even these high-level postgraduate courses. It suggests modernization. Modernization, Yeah. okay. But how does that tie into the goal? You mentioned complexity. Right. The source mentions the hope is that the complex topic is easily samaj manager, easily understood. Okay, so the AI is meant to help with understanding. For students already called bright. That's the interesting part, my guess. The AI aspect isn't about teaching basic facts they should already know. It might be about adaptive learning, maybe organizing complex data visually, or offering personalized ways to tackle tricky concepts. Like tailored explanations. Possibly. Or reinforcing things until they click. It could be about finding those small, subtle gaps in understanding complex theory that even bright students might have, and using the tech to fill them efficiently. Right, ensuring everyone's on the same page before moving to the really deep stuff. Makes sense. Dr. Madhukar mentions focusing on Ek Mahatvapurna topic. Yes, an important topic from the CC10 paper. So maybe the AI handles the groundwork for that key topic. That seems very likely. The AI lecture could pre-process or deliver the foundational knowledge needed for that specific Mahatvapurna topic in a really streamlined way. Okay, I see. So it's not replacing the expert, but maybe accelerating the knowledge transfer part. Exactly. It handles the efficient delivery of the base understanding. This frees up the valuable human expert time, Dr. Madhukar's time, to focus on the higher level analysis, the critical discussion, the nuances around that core important topic. Making the human interaction more high value. Precisely. So what we're seeing here is academic leadership actively using modern tools not just for show, but strategically, to make sure advanced, complex knowledge is actually absorbed and understood effectively. It's about making knowledge usable. Yeah, knowledge that sticks. So, thinking ahead then, if specialized courses like PG Zoology are using AI lecture as a term, well, it makes you wonder, doesn't it? What does this integration mean for the idea of university lecture itself? If the tech handles the core concept delivery, what absolutely must remain human-led in higher education? What's the irreplaceable part? नमस्कार। आज हम इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के एक
बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं, स्टैफिलोकोकल सुपर एंटीजेंस। इन्हें हम शॉर्ट में SAGs कहेंगे। ये कुछ खास बैक्टीरिया से निकलने वाले प्रोटीन है जो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना को मतलब एक चौंकाने वाले तरीके से जगा देते हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार है 2022 का एक रिव्यू लेख जो टॉक्सिन्स जर्नल में छपा था, सुपर एंटीजेंस अ पैराडॉक्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो आज का हमारा मिशन है इन SAGs के, आप कह सकती हैं, दोहरे चेहरे को समझना। एक तरफ तो ये खतरनाक बीमारियों की जड़ है, पर दूसरी तरफ इनमें बीमारियों के इलाज की भी मतलब एक संभावना छिपी हो सकती है, बिल्कुल डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड की तरह। सोचिए जरा, ये इतने पावरफुल है कि हमारी लगभग 20% टी कोशिकाओं को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, जबकि सामान्य एंटीजन वो मुश्किल से 0.01% को ही जगा पाते हैं। ये तो इम्यून सिस्टम के लिए एक धमाके जैसा हुआ। तो ये SAGs आखिर हैं क्या चीज़, कैसे काम करते हैं, ये हमारी सेहत पर इनका क्या असर होता है, और क्या विज्ञान इनके इस मिस्टर हाइड वाले रूप को काबू में करके इनके डॉक्टर जेकिल वाले रूप का फायदा उठा सकता है। चलिए इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं कि ये सुपर एंटीजेंस या SAGs आखिर हैं क्या। जैसा आपने कहा, ये बैक्टीरिया से बनने वाले प्रोटीन हैं। इनकी सबसे खास बात है मतलब इनका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का तरीका, ये नॉर्मल एंटीजन से एकदम अलग है। कैसे अलग है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब कोई बाहरी चीज एंटीजन शरीर में आता है तो हमारी इम्यून कोशिकाएं, जिन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या APC कहते हैं, वो पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। फिर उन टुकड़ों को अपनी सतह पर कुछ खास मॉलिक्यूल MHC क्लास 2 के साथ लगाकर टी कोशिकाओं को दिखाती हैं। एक तरह की पहचान परेड जैसी। हाँ बिल्कुल, एक पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन SAGs ये इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाईपास कर देते हैं। बाईपास मतलब ये कि इन्हें प्रोसेस होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सीधे जाकर टी कोशिकाओं पर मौजूद रिसेप्टर, जिसे TCR कहते हैं, उसके खास हिस्से V बीटा रीजन और APC पर मौजूद MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के बीच एक पुल की तरह चिपक जाते हैं। ओ, बिना किसी जांच पड़ताल के? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बिना सिक्योरिटी चेक के सीधे कंट्रोल रूम में घुस जाए। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है इम्यून सिस्टम का एक जबरदस्त मतलब अनकंट्रोल्ड एक्टिवेशन। बहुत बड़ी संख्या में टी कोशिकाएं, जैसा आपने कहा, 5 से 20% तक एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं और वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगती हैं। बाप रे। और साथ ही ये एक्टिवेट हुई कोशिकाएं भारी मात्रा में कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल छोड़ने लगती हैं, जिन्हें साइटोकिन्स कहते हैं। इसी को साइटोकिन स्टॉर्म या साइटोकिन तूफान कहा जाता है, और यही चीज कई गंभीर बीमारियों और लक्षणों की असली वजह बनती है। अच्छा, तो इनकी खोज कब हुई थी, ये पता कब चला इनके बारे में? इनकी पहचान हुई 1980 के दशक में। उस समय टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS के काफी मामले सामने आ रहे थे, खासकर उन महिलाओं में जो टैम्पॉन इस्तेमाल करती थी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो पता चला कि ये सिंड्रोम एक खास बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस ऑरियस के बनाए एक टॉक्सिन की वजह से हो रहा था। इसी टॉक्सिन को बाद में TSST1 नाम दिया गया। ये आप कह सकते हैं इन सुपर एंटीजेंस की ताकत का पहला बड़ा सबूत था दुनिया के सामने। तो क्या ये सिर्फ स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया ही बनाते हैं ये SAGs? देखिए, मुख्य रूप से तो एस ऑरियस और एक और बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये इनके मेन सोर्स हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ और बैक्टीरिया में भी पाए गए हैं और यहाँ तक कि कुछ वायरस में भी। पर आज हम मेनली एस ऑरियस वाले सैक्स पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सोर्स लेख है वो इन्हीं पर ज्यादा केंद्रित है। ठीक है। और ये एस ऑरियस, ये तो काफी आम बैक्टीरिया है ना? अक्सर हमारी स्किन पर या नाक में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल सही, एस ऑरियस हम में से कई लोगों के शरीर पर या अंदर मतलब शांति से रहता है। करीब 20-30% लोग तो इसे परमानेंटली अपनी नाक या स्किन पर कैरी करते हैं, और लगभग 50-60% लोगों में ये आता जाता रहता है। इसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अच्छा। ज्यादातर समय तो ये कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन अगर इसे मौका मिल जाए, मान लीजिए कहीं कट लग गया या इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ, तो यही बैक्टीरिया हल्के फुल्के इन्फेक्शन से लेकर जानलेवा सेप्सिस तक कर सकता है। और यही आम सा दिखने वाला बैक्टीरिया इतने खतरनाक SAGs बनाता है। क्या इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ, और काफी सारे। शुरू में जो खोजे गए उन्हें क्लासिकल SAX कहा जाता है, जैसे SEA, SEB, SEC और वो TSS वाला TSST1। लेकिन पिछले कुछ दशकों में
24 से भी ज्यादा नॉन क्लासिकल या नए ऐसे एग्स खोजे जा चुके हैं और ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। 24 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, इनमें एक बड़ा ग्रुप है जो EGC ऑपेरॉन नाम के एक जीन क्लस्टर से बनता है। इसमें SAG, SEI, SEM, SCN, SEO जैसे कई एसाग्स आते हैं। और ये EGC वाला क्लस्टर ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस के आधे से ज्यादा स्ट्रेन्स में पाया जाता है। 50% से ज्यादा में? यानी ये तो बहुत ही कॉमन हुए फिर। बिल्कुल। और क्योंकि लगातार नए खोजे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम अभी भी इनकी पूरी वैरायटी को जानते ही नहीं हैं। और एक और दिलचस्प बात, लगभग हर एस ऑरियस स्ट्रेन में कम से कम एक SAG बनाने वाला जीन तो होता ही है। तो अगर ये इतने कॉमन है तो फिर इन्हें शरीर में या लैब में डिटेक्ट करना कितना मुश्किल होता है? ये भी एक चैलेंज है। बिल्कुल है। पहली बात तो ये कि इनका बनना मतलब प्रोडक्शन कई चीजों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या है, आसपास का माहौल कैसा है, एंटीबायोटिक का प्रेशर है या नहीं। और दूसरी बात, बैक्टीरिया लैब में जैसा बिहेव करता है जरूरी नहीं कि शरीर के अंदर इन्फेक्शन के दौरान भी ठीक वैसा ही करे। हो सकता है लैब में कोई ऐसे कम मात्रा में बन रहा हो, जैसे ये EGC वाले एसेज हैं, वो लैब में क्लासिकल वालों जैसे TSST1 या SEB की तुलना में काफी कम बनते देखे गए हैं, पर शरीर के अंदर हो सकता है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो। अच्छा, तो लैब के रिजल्ट्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते? हाँ, कुछ हद तक। और एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ जीन मिल जाने से, जैसे मान लीजिए PCR टेस्ट से जीन का पता चल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉक्सिन बन भी रहा है या नहीं। ओके। टॉक्सिन की मात्रा जानने के लिए ELISA जैसे टेस्ट बेहतर माने जाते हैं। पर दिक्कत यह है कि अभी तक जितने भी 30 से ज्यादा SH पता चले हैं, उन सब के लिए रेडीमेड ELISA किट्स मार्केट में है ही नहीं। तो इसलिए इनकी सही मात्रा और भूमिका का पता लगाना अभी भी एक मुश्किल काम है। समझ गई। चलिए अब इनके खतरनाक रूप पर आते हैं, यानी इनके मिस्टर हाइड वाले पहलू पर। ये कौन-कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं? आपने TSS का जिक्र तो किया था। हाँ, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS इसका सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है। ये एक जानलेवा कंडीशन है। इसमें तेज बुखार आता है, ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर जाता है, दस्त होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। और ये सब उस साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है? बिल्कुल। वो जो साइटोकाइंस का तूफान उठता है वही ये सब करवाता है। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं क्या TSS के? मोटे तौर पर 2 तरह के। एक है मेंस्ट्रुअल TSS, MTSS, यानी जो मासिक धर्म से जुड़ा है। ये मुख्य रूप से TSST1 SAG के कारण होता है और जैसा हमने पहले बात की, टेम्पॉन के इस्तेमाल से जुड़ा पाया गया है। क्यों? टेम्पॉन से क्यों जुड़ा है? माना जाता है कि कुछ तरह के टेम्पॉन एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें एस ऑरियस बैक्टीरिया आसानी से बढ़ सकें और ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन बना सकें। ऑक्सीजन की सप्लाई, टेम्पॉन का मटीरियल, कितनी देर तक उसे इस्तेमाल किया गया, ये सब फैक्टर हो सकते हैं। आजकल मेंस्ट्रुअल कप को शायद इससे कम रिस्क वाला माना जाता है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है नॉन मेंस्ट्रुअल TSS, नॉन MTST। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है और किसी भी तरह के एस ऑरियस इन्फेक्शन से जुड़ा हो सकता है, जैसे सर्जरी के बाद घाव में इन्फेक्शन हो गया या स्किन पर कोई घाव था उसमें हो गया। इसमें TSST1 के अलावा दूसरे क्लासिकल SAGs जैसे SEB और SEC भी अक्सर पाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में EGC वाले SAGs जैसे SEG और SEI की भूमिका की भी बात की गई है। ये TSST1 इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? कोई खास वजह पता चली है? हाँ, एक महत्वपूर्ण खोज ये हुई है कि TSST1 योनि की परत बनाने वाली कोशिकाएं हैं, एपिथेलियल सेल्स, उन पर मौजूद एक रिसेप्टर CD40 से जाकर जुड़ जाता है। अच्छा। इस जुड़ाव से वहां सूजन बढ़ती है और वो जो प्रोटेक्टिव परत है, म्यूकोसल बैरियर, वो कमजोर हो जाती है। इससे टॉक्सिन आसानी से खून में पहुंच जाता है और फिर पूरे शरीर में फैलकर तबाही मचाता है। बाप रे। TSS के अलावा और कौन सी सीरियस कंडीशंस हैं जिनमें इनका हाथ हो सकता है? इनका रोल कई और गंभीर इन्फेक्शंस में भी देखा गया है, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस IE। ये दिल के वाल्व का इन्फेक्शन होता है। हाँ, सुना है। जब एस ऑरियस बैक्टीरिया खून में पहुंच जाता है, जिसे बैक्टीरियमिया कहते हैं, तो ये सैग्स दिल के वाल्व पर बैक्टीरिया के जमने में, जिसे वेजिटेशन कहते हैं, उसमें मदद करते हैं। ये वहां सूजन बढ़ाते हैं और वाल्व को ठीक होने से रोकते हैं, जिससे दिल को नुकसान पहुंचता है। इसमें भी क्लासिकल और EGC वाले दोनों तरह के सैग्स का रोल देखा गया है। और निमोनिया, एसोरियस निमोनिया भी तो होता है? हाँ, स्टैफोरियस निमोनिया का भी एक कॉमन कारण है, खासकर MRSA वाला। इसमें भी SAGs का रोल हो सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन वाले मरीजों से मिले बैक्टीरिया में TSST1, SEB, SEC जैसे SAGs पाए जाते हैं।
ये फेफड़ों में सूजन बढ़ा सकते हैं, वहाँ की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो हमारा सोर्स लेख है वो कहता है कि मनुष्यों में निमोनिया का सीधा कारण एसआईजीएस है, इसका सबूत अभी बहुत पक्का नहीं है।